सबके लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं एंड वन ऑफ माई बिगेस्ट गोल जहाँ तक मुझे याद है वॉज टू ट्रैवल सोलो. I've heard a lot about solo traveling and I was so fascinated by the idea of it. But पता नहीं, there was a fear of getting out of comfort zone, a fear of meeting new people, a fear of traveling all alone. And इसी fear की वजह से I was ignoring this thought for such a long time. As an introvert, meeting new people has always been a challenge for me. But वो कहते नहीं, there is no life without any challenges. So when I got chance to travel for work project, I was forced to travel solo. So this video is all about of my journey traveling solo, and of course I'll show you Ladakh from my side. So ये journey start होती है from 9th of September from Ahmedabad in a train. And after 15 hours, we reach Delhi. So after staying in Delhi for one day, on 11th of morning, I have to catch up a flight for Ladakh. Now I have heard कि जो लद्दाख फ्लाइट में व्यू आपको देखने को मिलते हैं is unforgettable. And I have to say, it was the best view I have witnessed. And मैं उसे देख के सिर्फ यही सोच रहा था कि how grateful I am for witnessing this with my own eyes. And मुझे अभी से फील आ रही थी, it will be my one of the beautiful trips I have been to. So जब आप कॉन्क्रीट सिटी से पहाड़ों में आते हो, आपको 1-2 दिन लगते हैं टू एडजस्ट करने में. एंड व्हेन आई रीच लद्दाख, पहले कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही शाम होते गई मेरा हेडेक भी बढ़ते गया. बट आफ्टर सम गुड फूड एंड स्लीप इट वॉज ऑल गुड. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकलते फॉर आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन. एंड आई विल टेल यू कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट फर्स्ट लुक एट द व्यू. मतलब ये सिर्फ मैंने फिल्मों में देखा था. दैट बीच में रोड है, साइड में पहाड़ जा रहे हैं. एंड विटनेसिंग दिस विद माई ओन आइज फील्स लाइक मैं कोई सपना देख रहा था. सो अवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज जंस्का रिवर. संगम भी बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ 2 रिवर्स मीट येट वो दोनों कंबाइन नहीं होते. लाइक लिटरली यू कैन सी द 2 शेड्स ऑफ द रिवर. क्रेजी. And also this place is the world highest for river rafting. I always feel like going to the places जहाँ पे you can find yourself, you can find peace, and you can feel your life is moving slowly. And शहरों में ये सब मिलना is quite tough. So जब भी मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ, I always take out some time to sit by myself all alone. जितना हो सके आई ट्राई टू टेक द ब्यूटी ऑफ द नेचर इन माई सेल्फ. So the next place we headed to was Leh Palace. जहाँ पे यू कैन सी द होल सिटी.
and it just felt so beautiful seeing that. So जब हम ये जगह पे आए, I don't know, but the vibe, the feel of the place was so positive. Like I was so lucky to witness the monk playing the drum, singing their prayer. There was a huge Buddha statue. And थोड़े टाइम के बाद I was sitting on the corner and just listening to prayer and meditating. At that moment, I felt so calm, peaceful, and सिर्फ वो 10 मिनट मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था. I hope कि मैं वहाँ ज़्यादा बैठ पाता, but it was already getting late, so we headed back towards hotel. आज हम जहाँ जाने वाले थे, कहते it's the world highest motorable pass. It's called Khardungla Pass and it's at 18,000 feet. I've also heard कि वहाँ बहुत लोगों को ऑक्सीजन की भी कमी फील होती है. But at the same time, I was also excited to see and witness what was this place. So जब हमारी जर्नी शुरू हुई एंड स्लोली जब हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाने लगे, the views were getting better, but at the same time the air was getting much thinner. And already I was feeling that. But ये पूरे टाइम the only thing which came to my mind was how lucky and grateful I am to be on this trip, to witness this all. I've started this trip as a solo, but पता नहीं कभी अनजान लोग दोस्त बन गए. But वो ही तो ब्यूटी है ट्रैवल की, है ना? You know one thing, हम जो भी इमेजिन करते हैं डिपेंड्स अपॉन हमने जो भी देखा है. But there are a lot of things in the world जो हमारी इमेजिनेशन के परे है. And one of that thing over here is sand dunes. इतनी cool जगह पे, high altitude पे, you can find sand dunes. Can you believe this?
आज हम जहाँ जाने वाले थे वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। कहते हैं वहाँ से पाकिस्तान दिखता है। इट्स द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली आई वॉज एक्साइटेड टू सी दैट। मेरा नाम जुल्करनैन है, मैं इसी विलेज से बिलोंग करता हूँ। इस टाइम आप लोग इंडिया के बिल्कुल 0 पॉइंट पे खड़े हुए एक तरफ से। इससे आगे ना कोई इंडिया का रोड है ना कोई विलेज है। जो सामने विलेज दिख रहा है आप सभी लोगों को, वो पाक वालों का विलेज है। उसका नाम है फ्रानू। रिवर ही दोनों कंट्री के बीच में एक बॉर्डर था पहले। रिवर के उस साइड इंडिया रहता था, इधर पाकिस्तान रहता था। जब वॉर हुआ तो वहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया ने कैप्चर किया। डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी को एंजॉय करने में बिलीव रखता हूँ। एंड जब आप लद्दाख में हो, इतना अच्छा व्यू हो, पहाड़ हो, डांस हो, इससे ज़्यादा क्या ब्यूटीफुल कुछ हो सकता है। जब आप लद्दाख के बारे में सोचते हो या देखते हो, द वन थिंग that always come up is Pangong Lake. अब पेंगोंग लेक जाने के लिए जो रास्ता था वो इतना ब्यूटीफुल, मैजिकल था, आई कांट पुट इन वर्ड्स। कभी कभी आपको ग्रीनरी दिखती है, कभी कभी आपको स्नो कैप्स वाले माउंटेन्स, तो कभी माउंटेन की कलर ही बदल जाता है। इट फेल्ट सो सरियल। एंड थोड़े टाइम के बाद माउंटेन के बीच में से आई सॉ द ब्लू वाटर एंड मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। आई वॉज विटनेसिंग दिस थिंग विथ माई ओन आइज। एंड मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, कितना भी कैप्चर कर लूँ, आई कैन नॉट टेल यू हाउ द वाइब वॉज ऑफ दिस प्लेस। ये सिर्फ आप यहाँ खुद आके महसूस कर सकते हो। ऐसी जगह पे आके यू कैन फील लाइक देयर इज सो मच पीस। यू कैन हियर योर थॉट्स, योर इनर वॉइस। यू लिव इच एंड एवरी मोमेंट। एंड ये सिर्फ ट्रैवलिंग में ही होता है। इट फोर्सेस यू टू लिव इन द मोमेंट, एंजॉय एवरी सेकेंड ऑफ इट। बहुत लोगों का ड्रीम होता है लद्दाख आने का, एंड व्हेन आई गॉट चांस टू कम हियर सोलो, आई वॉज स्कैर्ड about lot of things, but now I feel कि I was just overthinking. People really don't care. They don't know where have you came from, how you have been in your city. You can completely act like a new person, yeah, you can be all by yourself. So in the end, when I look back, the journey I took, it was no doubt the best decision I've made. Made a lot of new friends, made a ton of memories, and it helped me to learn a little more about me. And I can feel a change in myself. I really like going with friends, exploring different places. But now, I also can't wait to go more on solo trips. It was just the start.